जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको खैरियत से ही रखे। तो मैं आज का जो टॉपिक है वो है जी ए सेलुलर लाइफ, चैप्टर का नाम है और चैप्टर नंबर है 5। और आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले लास्ट लेक्चर में से एक क्विक रिव्यू है। So you need to answer of the following question, or if you know the answers, please note them down on your notebooks. And if you don't know the answers, so first of all, you need to identify them from the book, and then please write answers of all of the questions on your notebook. So very first question is, what is a bacteriophage? What do you know about TMV virus? Which type of single-stranded RNA is capable of being translated by the host machinery? Which type of genome is present in HIV virus, hepatitis virus, and mumps virus? And how would you explain Rouse sarcoma? So there are so many other questions from that last lecture, but this is just a quick review to know your understanding about the last lecture. So next, today's topic is structure of virus. आज जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो जनरल या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वायरस है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। Now the general structure of virus. Now look at this. Let me. So this is the word virion. आपको एक वायरियन वर्ड नजर आ रहा है जिसके नीचे मेरा रेड डॉट है। वायरियन एक another term used for virus. I have already told you in the first lecture that virion is the term used for the viruses. It means a complete viral particle, means complete infectious viral particle is called as a virion. And every virion consisting of two parts, ठीक है। उनकी बॉडी तो नहीं कहना चाहिए, जो भी उनका स्ट्रक्चर है, जो भी पार्टिकल्स हैं उसमें दो हिस्से हैं, one is core and other is coat, right? So I'm discussing the very first part. This is core. So virus has two parts, core and coat, right? Coat is the outer covering and core is inside, which is present inside that coat. Okay? And that core is actually the inner part of virion, definition likhi hai, and it is consisting of two things. One is genome and other is some various proteins or enzymes, you can say, although all of them are enzymes and all enzymes are proteins up till now, जितना भी एग्जाम जो भी जिसके अंदर है वो सब प्रोटीन्स ही है, ठीक है। तो जो वायरस का हिस्सा कोर है उसमें दो हिस्से हैं, वन इज जीनोम एंड अदर इज द एंजाइम्स और द प्रोटीन्स। अब अगर मैं जीनोम को डिस्कस करूं तो जीनोम में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आई थिंक दैट the genetic material of the virus is either DNA और RNA, मीन्स उसके अंदर कोई भी पार्टिकल हो सकता है, आई मीन मॉलिक्यूल हो सकता है, DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड DNA, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, डबल स्ट्रैंडेड RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइप का उसका जीनोम हो सकता है, मगर ये बात तय है कि जीनोम होगा ज़रूर या DNA या RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड DNA, सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड RNA. Then core proteins have so many things to do during the life cycle of the viruses. So one or the more enzyme that help virus in its mode of action in host. वो क्यों चाहिए, उसको अपना mode of action complete करने के लिए चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस का जिक्र है, जैसे HIV, राइट। HIV वायरस के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। अब नॉर्मल प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन, मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? Transcription is the copying of mRNA from DNA, right? This is the only method from which we can retrieve the information from the DNA. That copying of RNA from DNA, and whatever the type of mRNA is formed, it is called as mRNA, messenger RNA. Okay, transcription is the copying of mRNA from DNA is called as transcription, and this is reverse transcription, means copying of DNA from RNA, right? Copying of DNA from RNA, एक RNA है, एक वायरस है जिसके पास सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, उससे DNA बनाया जाएगा, ठीक है। और इस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसका दूसरा नाम है RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। देखो RNA पे डिपेंड कर रहा है और DNA बना रहा है ना, तो DNA पॉलीमरेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ DNA। तो है ये एक्टिविटीज की DNA पॉलीमरेज जैसी है, और करता क्या है, डिपेंड किस पे कर रहा है, RNA पे, DNA पे नहीं कर रहा, ठीक है। वो जो नॉर्मल हमारी बॉडी में DNA की रेप्लिकेशन करवाता है उसका नाम है DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, इसको आप सिर्फ DNA पॉलीमरेज भी कहते हो, ओके।
नेक्स्ट इज अच्छा, इसकी ड्यूटी बता रहे हैं आपको। जो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी देखा ना हमने, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जिसको कहते हो, उसकी ड्यूटी क्या है? कन्वर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम इनटू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जब हम डिटेल से साइकिल देखेंगे तो हमें ये बात समझ में आ जाएगी। इसके बाद इसके एग्जांपल्स में शामिल हैं रेट्रोवायरसेस। ऑल ऑफ द रेट्रोवायरसेस आर कॉल्ड एज रेट्रोवायरसेस बिकॉज ऑफ हैविंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, इनके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, या आप ये भी कह सकते हो ये आरएनए वायरसेस हैं। और ये तमाम तर रेट्रोवायरसेस ऑन्कोवायरसेस भी होते हैं, कैंसर कॉजिंग वायरसेस हैं। इसमें दूसरी एग्जांपल हेपेटाइटिस बी की है, वो भी एक रेट्रोवायरस है और उसके पास भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। देन आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, एक और एंजाइम की ज़रूरत होती है जब वायरसेस का आरएनए नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, तो वो तब भी आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम उनके पास होता है। ये नेगेटिव सेंस पॉजिटिव सेंस में लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ। मीन्स कि जब भी उनके पास एक ऐसा आरएनए हो जिसकी ट्रांसक्रिप्शन फौरी तौर पे पॉसिबल ना हो, तो उसको हम नेगेटिव सेंस आरएनए कहते हैं। तो क्या किया जाता है इन एंजाइम्स, इन वायरसेस के अंदर, इनके अंदर नेगेटिव सेंस को पॉजिटिव सेंस में कन्वर्ट किया जाता है। तो उसके लिए आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इन वायरसेस को चाहिए होता है। तो ये या तो इनके अंदर ही होता है या ये होस्ट का भी यूज़ कर लेते हैं। फिर इसके बाद है अदर प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन द वायरसेस आर प्रोटीएज एंड इंटेग्रेज। जब ये अपनी बहुत सारी प्रोटीन्स एक साथ बनवा लेते हैं तो फिर उनको उनके पीसीस करने होते हैं ना, उनको कट करना होता है। तो उनको कट करने के लिए एक एंजाइम चाहिए प्रोटीएज। और जैसे ही वायरस का जीनोम होस्ट के सेल में एंटर होता है तो उसको होस्ट के जीनोम का पार्ट बनने के लिए एक और एंजाइम चाहिए होता है जिसका नाम है इंटेग्रेज। आपको ये सारे एंजाइम्स एचआईवी का साइकिल जब मैं पढ़ाऊंगी तब एक्चुअली में क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल अब ये याद रखो कि प्रोटीएज भी होता है और इंटेग्रेज भी होता है। The function of the protease is to cut the bigger protein into smaller ones, right? And integrase is to integrate the viral genome into the host genome. फिलहाल आप ये दो लाइन्स याद रखो। And the other part of the virus is coat, the outer covering of viral particle. So it consists of capsid and envelope. ठीक है ना, बाहर के उसमें यानी कि बाहर उसके ऊपर क्या कवरिंग चढ़ी हुई होती है, यूनिक कह सकते हो। सबसे पहले डीएनए के ऊपर कैप्सिड होता है और फिर कैप्सिड के ऊपर एनवेलप होता है। कैप्सिड तो हर वायरस के पास होगा ही होगा, लेकिन इन्वेलप सबके पास हो ये ज़रूरी नहीं होता। अच्छा, अब मैं आपको इसकी फिगर दिखाती हूँ। वायरल कंपोनेंट्स को दिखाती हूँ। किसी भी वायरस की जो कंपोनेंट्स हैं उनमें क्या क्या शामिल है? न्यूक्लिक एसिड्स, कैप्सिड और एनवेलप, राइट। तो मेजरली आप यूँ भी लिख सकते हो दैट ऑल वायरल कंपोनेंट्स आर मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स: न्यूक्लिक एसिड्स, कैप्सिड्स एंड एनवेलप। दिस इज द एनवेलप, दिस इज कैप्सिड एंड दिस इज न्यूक्लिक एसिड. Another example, we have another example. This is envelope, outer covering is envelope, then is the capsid. Capsid has a specific shapes, discuss करते हैं. And inside the capsid here we have nucleic acid or genome, right? Okay, then viral components: protein, capsid or shell that surrounds the nucleic acid. ठीक है, न्यूक्लिक एसिड प्लस कैप्सिड इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोकैप्सिड। यानी कि कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनके पास सिर्फ न्यूक्लियोकैप्सिड होता है, और ऐसे न्यूक्लियोकैप्सिड वायरसेस को हम नेकेड वायरसेस कहते हैं। ठीक है, ऑल दोज वायरसेस हु हैव जस्ट टू थिंग्स। अरे मेरा पॉइंटर कहीं गायब हो गया है। ओके, अच्छा, पॉइंटर गायब हो ही जाता है। ठीक है जी, न्यूक्लिक एसिड प्लस कैप्सिड। ठीक है, जब भी किसी वायरस में सिर्फ ये दो चीज़ें होंगी, न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड, तो उसको हम न्यूक्लियो कैप्सिड कहते हैं। ठीक है, जैसे बैक्टीरियोफेज ही है न्यूक्लियो कैप्सिड, जिस इनको हम नेकेड वायरसेस कहते हैं, दैट डू नॉट हैव एनवेलप ऑन देम अराउंड देम। एंड एनवेलप्ड वायरसेस कहते हैं जिनके पास एनवेलप प्रेजेंट होता है। सो दिस इज अ न्यूक्लियोकैप्सिड जिसमें सिर्फ डीएनए और कैप्सिड है, एंड दिस इज एनवेलप्ड वायरस। ठीक है, एनवेलप्ड वायरस हम कहेंगे जब इसके अंदर किसी भी वायरस के तमाम तर पार्ट्स होंगे, क्योंकि किसी भी वायरस में तो तीन ही पार्ट्स हैं बेसिकली। तो अंदर जीनोम और कुछ प्रोटीन्स, फिर बाहर कैप्सिड और कैप्सिड के बाहर एनवेलप। तो इस वाले में एनवेलप्ड के पास ऑल थ्री स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, व्हाइल न्यूक्लियोकैप्सिड हैज जस्ट टू थिंग्स, वन इज द कैप्सिड एंड अदर इज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आई होप कि आपको स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत समझ आ गया है। अब कैप्सिड पे जा रहे हैं। कैप्सिड एक प्रोटेक्टिव कोट होता है, प्रोटीन्स का बना हुआ है,
एंड कोर प्रोटीन्स को कवर करने के लिए बना हुआ है. सो कैप्सोमर्स किसका बना हुआ होता है? कैप्सिड. कैप्सिड इज बेसिकली मेड अप ऑफ कैप्सोमर्स विच आर आइडेंटिकल रिपीटिंग सब यूनिट्स. मीन्स एक ही टाइप की प्रोटीन होती है और वो बार बार रिपीट हो रही होती है. एंड द नंबर ऑफ कैप्सोमर्स इज ऑल्सो वेरी स्पेसिफिक टू फॉर अ स्पेसिफिक वायरसेस, राइट? सो let me show you a figure for capsid. Okay, this is the single unit is capsomer, right? And all of the capsomers, when they get joined, they will form a capsid, right? All of the capsomers, when they get joined, they will form a capsid. Okay, ये एग्जांपल है. देखो पहले बन रहा है, फिर इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड अंदर जा रहा है, न्यूक्लिक एसिड अंदर चला गया, अब मजीद ये अंदर कवरिंग इसके अंदर जा रहा है. इसको ये हेलिकल की एग्जांपल है. हेलिकल कैप्सिड आपने कहाँ पढ़ा था? हेलिकल कैप्सिड किसका था? उसका था टीएमवी का. ठीक है, टीएमवी का कैप्सिड कैसा था? हेलिकल था. अब ये आइकोसाहीड्रल सिमेट्री कैप्सिड की जो मैंने आपको अभी इस फिगर में दिखाई थी, ये हेलिकल थी, राइट? ये वाली जो थी ये हेलिकल सिमेट्री थी, राइट? रिजिड रॉड लाइक. ठीक है, और ये वाली सिमेट्री आइकोसाहीड्रल है. आइकोसाहीड्रल से मुराद होता है जैसे जिसमें भी कोई एंगल्स बनाए, हीड्रॉन बनाए ना, जिसमें भी 6 कॉर्नर ड्रिंक्स मल्टीपल टाइम्स हो. लेकिन अब 6 कॉर्नर ड्रिंक्स का कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है. या तो ये देखो रहे हो आप, इसमें इसके तो 6 हैं, ठीक है, लेकिन इसका देखो बार बार 3 के रिपीट हो रहे हैं. किसी में बार बार 5 रिपीट होता है, किसी में बार बार 2 रिपीट होता है. तो बहुत सारी वैरायटी है और इस स्ट्रक्चर की वजह से अंदर एक बहुत स्पेस क्रिएट हो जाती है. कैप्सिड के अंदर स्पेस क्रिएट हो जाती है. और ये आप देख रहे हो कि सिंगल स्पेसिफिक यूनिट प्रोटीन्स के इसके ऊपर अटैच हो रहे हैं कॉर्नर्स पे, जो आस्ता आस्ता सब फिल कर देंगे. सो एक protein is called as a single unit is called as capsomer, or multiple, when all of them are get attached to the capsid, the symmetry, according to the symmetry of the capsid, then it is called as a capsid. So it is the outermost covering of a virus. Capsomer, identical repeating subunits. Number of capsomers is specific to particular kind of virus. For example, herpes virus has 162 capsomers, while adenovirus has 252 capsomers. ठीक हो गया. सिमेट्री इन वायरस कैप्सिड इज आइकोसाहीड्रल, पॉलीहीड्रोल और स्फेरिकल. स्फेरिकल जैसे कि हमने देखा था इन्फ्लुएंजा वायरस. इन्फ्लुएंजा वायरस डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक सिमेट्री, बट इट इज स्फेरिकल इन इट्स स्ट्रक्चर. When capsomers are arranged in 20 triangles, 20 triangles means icosahedral की specific polyhedron shape को आप कह सकते हो icosahedral. Next is helical. Helical भी दिखा दी मैंने. When capsid is arranged in hollow coat, hollow अंदर से खाली सा था ना, that appears rod shape. ओके जी, ये जो था इसका कैप्सिड. सो कैप्सिड आर ऑफ 2 मेन टाइप्स. वन इज हेलिकल एंड अदर इज पॉलीहीड्रल, आइकोसाहीड्रल जिसको हम कहते हैं. उसमें उसी में एक और थर्ड टाइप है स्फेरिकल या सर्कुलर या गोल जैसा का बिल्कुल. सो व्हेन कैप्सिड इज अरेंज, अच्छी तो मैंने बता दिया आपको. एनवेलप, एनवेलप पे आ जाओ तो फ्यू वायरसेस हैव एडिशनल लिपोप्रोटीन एनवेलप अराउंड द कैप्सिड. कुछ वायरसेस के पास है, राइट? नॉट ऑल ऑफ द वायरसेस हैव एनवेलप अराउंड देम, बट सम ऑफ द वायरसेस हैव एडिशनल लिपोप्रोटीन स्ट्रक्चर. Now, how they get that additional protein, lipoprotein envelope? They get that from the host membrane. यानी कि इसकी chemical composition exactly like that of the chemical composition of होस्ट सेल. जैसे हमारी सेल मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन में लिपिड बाइलेयर है ना, तो उनका भी आउटर मोस्ट लिपोप्रोटीन किसका बना हुआ होगा? लिपोप्रोटीन का बना हुआ होगा, बिल्कुल. लिपिड बाइलेयर प्लस एम्बेडेड प्रोटीन्स. हाँ, उसकी अपनी वायरल प्रोटीन कुछ उसके ऊपर स्टडीड होंगी, राइट? द पर्पस इज टू मेक एडहेजन विद द होस्ट रिसेप्टर्स, right? So derived from the cell surface membrane of host, also contain virally encoded proteins. उसके ऊपर studied होती हैं virally encoded proteins. इनको हम कहते हैं glycoprotein spikes, which covers the envelope and helps in the recognition of host cells. मैंने को बताया उसको help करती हैं जुड़ने में. Now this is a tobacco mosaic virus. इसके ऊपर कैप्सोमर्स आप देख रहे हो किस तरह अरेंज्ड हैं हेलिकल फॉर्म में. Then this is the structure of adenoviruses. ठीक, आइकोसाहीड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं. ऐसे ट्रायंगुलर टाइप 20 faces हैं. This is spherical example of spherical capsid of influenza, and this is a tadpole capsid which is present in bacteriophage.
Thank you all. This is the end of the lecture, and thank you for the patience listening. If you have any question, you can ask me in the comments, and don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon as well, so as you can receive my all updated latest lectures. Thank you. Allah Hafiz.